सो ट्रेडर्स डेट है आज का 8 सितंबर. टुडे आई विल बी taking a one live trade uh, just to show you how I analyze the market. And this is a perfect time to take the trade because if you can see, if I'm analyzing the market in just 1 hour of time frame, let's remove the indicator. This is just for the little bit confirmation. You can see, guys, market has rallied a lot and market needs a retracement. That's the only logic I will be using here. And second thing, if you are putting this previous Deka high, you can see this was the strongest resistance. From here only market turned down. And I'm expecting after this kind of a bullish rally, market need to retrace a little bit till 23.6% or 38.2%. So let's understand what will be the 38.2% of level so that we can put the target till that level. So all right, guys, you can see now this is the previous resistance zone. Market give the breakout to this previous resistance zone, and it's time for market to take a retracement and get till to 0.236% level of Fibonacci. Okay, so now what I will be doing, I will be taking a hedge so that you can understand how hedges will give you this security. First of all, let me go to the strategy builder. This will be the paper trade because I don't want to influence you all by showing heavy profits and heavy losses. I just want to tell you today what is the benefit of hedging so that you can understand how hedges will give you the proper security when it comes to your capital protection. Okay. तो देखते हैं guys, अभी ये breakdown दे रहा है and I will be going short on the market. So short I will be going like just this. मैं क्या करूंगा, मार्केट नीचे आ रहा है मतलब जो कॉल का प्रीमियम है वो टूटेगा, राइट. तो मैं एक एट द मनी इन द मनी स्लाइटली इन द मनी का कॉल बाय करूंगा एंड उसके डबल वाला 100 रुपीज मतलब है 200 250 ये वाला कॉल सेल करूंगा. ओके, नाउ यू कैन सी गाइज इन दिस ट्रेड माय परफेक्ट risk is of only 2000 3000 rupees 8%, and my reward will be 7200. 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है यहाँ पे. दैट इज नॉट इंट्राडे पर्पस बट दिस इज द होल वीक का till expiry का. But I don't want to play it till expiry. Okay. So what I will do, I will go with this same trade, and you can see margin needed for this trade is 23,000 rupees only. Okay. In 23,000, you can also do hedging and you can get the good capital protection. Okay. So I will be going with 10 lots because I want to show you that how you can book at least 2 to 3% of profit intraday if you have good capital by using hedging and with the capital protection. Okay. तो मैं उसको ऐड करता हूँ अभी. लेट्स चेक फर्स्ट. ओके, ये ब्रेक डाउन देना चालू कर चुका है. 1 तारीख का जो भी रहेगा निफ्टी will be a put spread, and you can use this platform called as Sensible so that you can pre-trade and backtest your data, which will give you confidence in upcoming dates that your strategy is actually working. Okay, तो you can see now अभी just मैंने ट्रेड लिया है and right now 900 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है. ठीक है, तो 19,550 का जो कॉल है मैंने शॉर्ट किया है 19,550. निफ्टी निफ्टी. ठीक है गैस, तो 230 के अराउंड आ रहा है. वैसे तो मुझे यहीं पे शॉर्ट करना था 250 के अराउंड, बट चीजें बताने तक ये 230 तक आ गया, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो वी हैव पुट द टारगेट ऑफ 0.238 लेवल्स, राइट. तो हमारा टारगेट बेसिकली बन के आता है, फर्स्ट टारगेट है प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक, राइट, 19,720. तो ये मेरा इनिशियल टारगेट रहेगा. एंड व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस? माय स्टॉप लॉस विल बी सिंपल गाइस. माय स्टॉप लॉस विल बी डे हाई. अगर डे हाई कट जाता है तो आई विल बुक द लॉस. सो इफ यू आर गोइंग टू सी एज पर द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मेरा एंट्री नियर लेवल यहीं पे है. मैं अगर यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाता हूँ एंड ये मेरा अगर टारगेट लगाता हूँ, सॉरी, आई नीड टू सिलेक्ट द शॉर्ट पोजिशन. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. शॉर्ट पोजिशन में अगर यहाँ पे एंट्री करता हूँ, दिस इज माई स्टॉप लॉस and this will be my target. Okay,
तो यू कैन सी 1:2 का टारगेट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मुझे मिल रहा है। तो 1:2 का टारगेट रखेंगे। अभी करंटली अगर पोजीशन देखेंगे तो 2500 रुपीज के प्रॉफिट में चल रहा है, एंड विच इज सेफ प्रॉफिट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस, क्योंकि आपको पता है इस ट्रेड में अगर ये आपके अगेंस्ट भी चालू हो गया तो ये आपका स्टॉप लॉस क्या है? 19,790, 19,800। Okay, so you can go and see on chart here 19,800 जब आएगा तो आपका लॉस कितना है, राइट? तो यू कैन सी 19,790 एंड 19,800, मैक्सिमम 4,500 रुपीज का आपका लॉस होगा, राइट? तो 4,500 रुपीज का आपका रिस्क है इस ट्रेड में पूरा, एंड 4,500 के रिस्क के अगेंस्ट ये आपका कैपिटल कितना डिप्लॉय हुआ है? 2,36,000, मतलब नियरली अबाउट 1.5% का रिस्क आप ले रहे हो, विच इज अंडर यूर एपेटाइट। 1.5% का कैपिटल रिस्क जो है वो आपके एपेटाइट में आता है, बिकॉज आप 10 भी ट्रेड गवाओगे तो आपका 15% का लॉस होगा। लेकिन अगर आप एक ट्रेड अच्छा पकड़ लोगे जहाँ पे आपका हेड जो है वो अच्छी तरीके से चल रहा है, यू कैन गेट द प्रॉफिट्स अप टू 50% ऑफ योर कैपिटल। यू डोंट हैव टू थिंक मच, यू जस्ट हैव टू सिट इन द ट्रेड विद द कॉन्फिडेंस। तो मार्केट अभी आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो कंप्लीटली बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था, एंड वी हैव ट्राइड टू कैच द मार्केट एट टॉप। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि हम गलत भी साबित हो सकता है, यहाँ से मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट करके अपर साइड की मोमेंटम दिखा सकता है। बट नो नीड टू वरी, बिकॉज हमें हमारा लॉस जो है वो पता है, 1.5% का बस लॉस है, एंड 4,500 का प्रॉफिट लॉस है। तो प्रॉफिट देख लेते हैं, 19,722, राइट? 19,722, एक सेकंड बस, 19,750, ओके। तो 19,750, so you will get 9,000, 10,000 rupees ka profit in this trade, right? So you can see now 3,000 rupees ka profit, running profit, and I'm sitting in the trade. Though it's a paper trade, I have shown you in front of you what is my entry point, what is the logic behind it, and how I am sitting in profit. And just look at the momentum. Once I have taken the trade, जस्ट मैंने ट्रेड लिया, एंड आफ्टर दैट जस्ट लुक एट द मोमेंटम। और ये पैटर्न मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को सिखाया है इन माय अगस्त बैच। तो अगस्त बैच के जितने भी मेंबर्स हैं वैलिडेट करेंगे इस चीज को, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि आपने ये चीज को नोटिस किया था कि नहीं किया था। व्हाट आई हैव टीच गाय, आपको मार्केट में बताया जाता है कि दिस इज माय फर्स्ट बॉटम एंड दिस इज माय सेकंड बॉटम। ये दोनों टॉप जो है वो एक लाइन में आते हैं, दिस इज माय फर्स्ट टॉप, दिस इज माय सेकंड टॉप। बट अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज द टॉप थ्योरी? This is my first top, this is my second top, and this is my perfect double टॉप पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये डाइवर्जेंस चाहिए, ठीक है? ये डाइवर्जेंस अगर टॉप पे मिलेगा तो आई विल बी शॉर्टिंग द मार्केट विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। ओके, एंड you can understand, you can see how this Fibonacci levels work beautifully. You will understand कि मार्केट ने एग्जैक्ट 0.32 का लेवल जो है 19,772 यहाँ तक टच करेगा, and यही से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब मुझे बस इस मोमेंटम के लिए ट्रेड करना है, ठीक है? मैं पूरा दिन बैठना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड करना है। उसके बाद मार्केट यहाँ से घूमे, ऊपर जाए नीचे जाए, दैट्स नॉट माय कंसर्न, बिकॉज मेरा जो रिस्क एपेटाइट था उसके हिसाब से मेरा टारगेट जो है वो भी अचीव हो चुका है, ठीक है? तो चैनल पे अगर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी गाइस, सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही बहुत अमेजिंग हेजेस लेके आने वाला हूँ मैं आपके लिए, सो दैट आपका कैपिटल जो है वो सेफ रहे, एंड दैट इज माय मेन मोटो कि आपका कैपिटल जो है वो बचना चाहिए। ओके, देखते हैं अभी क्या होता है। 19,000 स्मूथली मार्केट नीचे आ रहा है, चलो कोई इशू नहीं। तो गाइस आई वांटेड टू टेल यू फ्यू थिंग्स सो दैट आप सोच सको इन चीजों के बारे में। देखिए गाइस, आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग में आपका विन रेट कितना होता है गाइस? डोंट ट्राई टू आंसर मी, आंसर योरसेल्फ ओनली, बिकॉज इट विल हेल्प यू अहेड, ठीक है? तो देखिए, अभी 4,500 का हमारा इंट्राडे का रिस्क था, 4,000 रुपीज का प्रॉफिट भी यहाँ पे दिख रहा था, राइट? तो 1:1 का टारगेट हमें नियरली अबाउट मिल चुका है, बट वी आर सेटिंग इन ट्रेड विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज हमें पता है हमारा एनालिसिस पावरफुल है, हमारा कॉन्फिडेंस है हमारा एनालिसिस पे, इसको आना तो नीचे ही है। अगर ऊपर चला भी गया तो व्हाट विल हैपन? वी विल टेक 4,500 रुपीज का लॉस। ओके, दैट इज द थिंग। नाउ आई वांटेड टू शेयर सम साइकोलॉजिकल पॉइंट्स विद यू गाइस। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए कि आप ऑप्शन बायर हो,
ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग आप जब भी करोगे तो आपका ट्रेड लेने के बाद ही प्रीमियम डीके आपके अगेंस्ट जाना चालू होता है, राइट। और आप बोलते हो कि ट्रेड जैसे ही लिया मैंने मुझे लॉस दिखाना चालू हो गया। तो भाई मेरे, अगर आपको पता है कि आपका विन रेट जो है वो बहुत कम है, तो आप ऑप्शन बाइंग कर क्यों रहे हो? आपको भी पता है 50,000 के कैपिटल में आप जस्ट एक ट्रेड अवे हो कैपिटल वाइप आउट करने के लिए। ठीक है, आप स्टॉक्स में ऑप्शन बाइंग करोगे, आप इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करोगे, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट माय कंसर्न। बट आई एम अगेंस्ट ऑप्शन बायर, बिकॉज ऑप्शन बायर 99% पैसा गवाता है, बस 1% ऑप्शन बायर है जो पैसा कमाता है, राइट। तो हमें 1% की कैटेगरी में आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप की एंट्री जो है वो परफेक्ट रखनी पड़ेगी। अब दिस वाज द परफेक्ट एंट्री, एग्जैक्ट परफेक्ट एंट्री जैसा आपको चाहिए था, जिस एंट्री पे आपको प्रीमियम अच्छा खासा मिल जाता, एक स्पाइक मिल जाता, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। बट आप प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता नहीं है आपका प्रीमियम जो है। आई विल शो यू ऑन चार्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। 19,750, ठीक है। टी 19,750 पुट पुट चाहिए मुझे, सॉरी, पुट। ठीक है, नाउ यू कैन सी गाइस, ये जो पुट है मेरा, ये पुट मुझे ब्रेकआउट लेवल 77 पे दे रहा था, 77 टू 95, 20 पॉइंट्स का मुझे मोमेंटम मिल गया, आई एम डन फॉर द डे। ओके, बट आप अब आपको पता नहीं है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर मार्केट यहीं पे खड़ा रहा, मार्केट अगर यहीं पे खड़ा रहा तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये आपको पता नहीं है, राइट। इसका प्रीमियम डीके होता रहेगा एंड ये आपकी कॉस्ट पे आ जाएगा, तो आप निकलने के बारे में सोचोगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में देखिए, करंटली दिस इज ट्रेडिंग एट 225 रुपीज। ये यहीं पे भी खड़ा रहता है ना, तो इसका प्रीमियम जो है वो टूटेगा, लेकिन ये वापस हमारे सेलिंग प्राइस, जो हमारा एवरेज प्राइस कितना है, 248, 248 के प्राइस तक जाएगा भी नहीं ये, अगर मार्केट यहीं पे खड़ा रहा तो। लेकिन आपका ये जो प्रीमियम है ये डीके होके वापस आपकी बाइंग प्राइस तक आ जाएगा विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन सेलिंग प्रेफर किया करो, वहां पे आपका विन रेट जो है वो प्रॉपरली बहुत हाई होता है। एंड आप अगर हेज बना के चलोगे तो हेजिंग के फायदे क्या है ये बता देता हूँ पहले मैं आपको। हेजिंग का फर्स्ट फायदा है गाइस, आपका ऑल कैपिटल कभी इन नहीं हो सकता है। आपका जो ट्रेड है इसमें एक स्पेसिफिक फिक्स लॉस है, स्पेसिफिक फिक्स प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इमोशन भी कंट्रोल में है और आप यहाँ पे ग्रीडी भी नहीं हो, राइट। अगर आप ग्रीडी हो तब आप ऑप्शन बायर हो, आपकी इमोशन पे कंट्रोल नहीं है तो आप ऑप्शन बायर हो। लेकिन जब ये दोनों चीजें हमारे हाथ में है, ग्रीड एंड इमोशन, तो हमें ट्रेड को होल्ड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एज ऑप्शन बायर मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता, एज ऑप्शन बायर जो है ये ट्रेड जो है मैं अभी निकल गया होता। लेकिन एज ऑप्शन सेलर मुझे पता है 250 48 तक आ भी गया तो आई विल बी कटिंग द ट्रेड एट कॉस्ट टू कॉस्ट। मेरे पास बफर है 20 50 पॉइंट्स का। लेकिन अगर ये 10 पॉइंट्स भी नीचे चला गया तो आपका लॉस जो है वो 50% से ज्यादा वाइप आउट हो गया है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट ही जस्ट 4,000 दिखा रहा है, वाइप आउट होगा तो 2,000 रुपीज होगा, तो आपको उसकी कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन आपको पता है मैं अगर बैठा रहूंगा मार्केट यहीं पे पूरा दिन भी रहेगा ना, तो इसका प्रीमियम 250 से एटलीस्ट 200 या 180 तक आ जाएगा, राइट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन सेलिंग इन हेजिंग साइड। और गाइस, तो बहुत से मुझे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं मुझे कि सर ऑप्शन बाइंग का भी वीडियो बनाओ, तो ऑप्शन बाइंग का वीडियो आई विल बी शेयरिंग इन अपकमिंग डेज। बट आई डोंट वांट टू गिव यू फेक होप्स कि गाइस ट्रेडिंग किया करो, ऑप्शन बाइंग किया करो, ऑप्शन बाइंग से आप करोड़पति बन जाओगे, ऑल दिस इज बुलशिट। कोई भी आपको कुछ भी बताएगा, डोंट ट्राई टू ट्रस्ट दोज पर्सन, ओके, दैट्स द थिंग। Trust your capacity, trust your ability, trust your risk management, and mostly trust your setup. आपके पास अगर कोई सेटअप ही नहीं है गाइस, तो you will not be able to make money in market. That's the simple thing. आप YouTube पे जाके 10 स्ट्रैटेजी सीखोगे, 10 में से 10 स्ट्रैटेजीज को आप एक महीना बैक टेस्ट करोगे, हर महीना, हर महीना 10 स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट की है आपने, उसके बाद आपने डिसाइड किया है कि कौन सी स्ट्रैटेजी का विन रेट जो है वो नियरली अबाउट 70% से ज्यादा है, जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मुझे 1:2 का मिल रहा है। तो आई कैन फॉलो दैट सेटअप। आप लोगों ने 99% लोगों ने ये चीज नहीं की होगी, क्योंकि आप एक सेटअप को 2 3 ट्रेड में ले लेंगे, 2 3 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप अगले सेटअप की ओर भाग जाओगे। एवरी सेटअप वर्क्स गाइस, एवरी सेटअप ऑन यूट्यूब, एवरी सेटअप ये वर्क्स। बट आपको क्या करना होता है, आपको पहले तो उसका करना होता है बैक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको करना होता है इसका फ्रंट टेस्ट। बैक टेस्ट 1 मंथ करो, पेपर ट्रेड फ्रंट टेस्ट में 1 मंथ करो, उसका एक डाटा बनाओ प्रॉपर,
ठीक है, वो डाटा आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट कितना है, वो डाटा आपको बताएगा कि आपका सक्सेस रेट कितना है। अगर आप डाटा पे फोकस करोगे तब जाके आप विनिंग सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ओके, दिस इज द थिंग आई वांटेड टू टेल यू टुडे। सो राइट नाउ अभी 5300 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, 1:1 के अराउंड हम आ गए। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल नॉट बी बुकिंग द प्रॉफिट्स एट दिस करंट मोमेंट। ओके, 1:1 का आ गया है मुझे प्रॉफिट, तो व्हाट माय फर्स्ट टारगेट इज, अब मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया है। ठीक है, मतलब ये जो 248 है, अगर ये प्राइस 217 से वापस 248 तक जाएगा तो आई विल क्लोज माई ट्रेड। ठीक है, मैं आज लॉस नहीं बुक करूंगा, बिकॉज मेरा जो एपेटाइट था उस एपेटाइट के हिसाब से मेरा ट्रेड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। राइट, वही चीजें आप देखिए, अब ये स्मूथली फॉल करना चालू हो गया है। अब मार्केट यहाँ पे रुकेगा भी नहीं ना तो भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा तो भी कोई इशू नहीं है, मुझे पता है कि ये 248 तक नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो मैं विदाउट लॉस निकल जाऊंगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हेजिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है, एम पैटर्न प्रॉपरली जो वर्क करता है, डबल टॉप डबल बॉटम, ये सारे पैटर्न्स के कुछ ना कुछ लॉजिक्स है। ये सारे लॉजिक्स जो है वो मैं आपको सिखाता हूँ अपने अगस्त की जो बैच है उसमें। अब उस बैच में जितना भी मैंने कंटेंट आपको सिखाया है, इन ऑल दैट कंटेंट व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिकॉर्डेड ऑल दोस वीडियोस एंड आई हैव अपलोडेड टू द ऐप। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिटेल्स डाल रहा हूँ कि एग्जैक्ट में क्या सिखाता हूँ। मैं इक्विटी से लेके ऑप्शंस हेजिंग, ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शंस सेलिंग एंड इंटर मार्केट एनालिसिस, मतलब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो मार्केट में प्राइसेस नीचे कैसे आएगी। आपका डाउ जोन्स जो है वो अगर वीक परफॉर्म करेगा तो ग्लोबली उसका क्या इम्पैक्ट होगा, नास्डैक आईटी से कैसे रिलेटेड है। एंड ये नहीं बस, सेंसिबल का प्रॉपर यूज कैसे करना है पेपर ट्रेड के लिए, सेंसिबल पे आप एफआईआई का डाटा कैसे देख सकते हो, एंड सेंसिबल पे जाने के बाद आप अपने आप का कन्विक्शन कैसे बढ़ा सकते हो बाय फोकसिंग ऑन इवेंट्स, जो फेडरल मिनट्स रहते हैं, या फिर जो जीडीपी डेटा होता है, इन्फ्लेशन डेटा होता है, उसके बाद नॉन फार्म पेरोल का डेटा होता है, हर कंट्री का वो डाटा आता है। हर कंट्री का वो डाटा बताता है कि मार्केट का मूड माहौल क्या होने वाला है। राइट, तो उस डेटा को एनालाइज करके, उस डेटा का यूज करके आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ये पूरा मैंने चीजें सिखाई है। ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे व्हाट्सएप, नीचे मैं ऐप का लिंक दे दूंगा, यू कैन गो एंड परचेज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई डोंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ कॉल्स एंड टिप्स फ्रॉम ऑनवर्ड्स। आई विल नॉट बी गिविंग एनी काइंड ऑफ कॉल्स एंड टिप्स बिकॉज आई डोंट बिलीव कि कॉल्स एंड टिप्स से पैसा बनता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हार्डवर्क आपका होगा, पैसा आपका होगा। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए कि आप कॉल्स दे, आप अकाउंट हैंडलिंग वगैरह कुछ भी सर्विस नहीं है हमारी। हम बस सिखाते हैं और लेजिट चीजें सिखाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम ट्रेडिंग दिस लाइव ट्रेड, सो दैट आपको पता चल सके कि हाउ ऑल दिस थिंग्स आर वर्किंग इन मार्केट। ये जस्ट एम पैटर्न का ब्यूटी है, बाकी कुछ नहीं है। और थोड़ा साइकोलॉजिकल, जो मैंने आपको अभी जस्ट एनालिस बताया था, पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। उस एनालिसिस का इफेक्ट आपके रिजल्ट आपके सामने है। 6400 रुपीज का अभी प्रॉफिट चल रहा है। व्हाट इज अवर टारगेट, अवर टारगेट इज दिस, जो प्रीवियस डे का लो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, दिस इज द टारगेट। एक बार यहाँ पे इसने टच कर दिया 19,723 को, या 720, राइट, 720 का एक बार टच कर दिया लेवल इसने, तो आई विल बुक द ट्रेड। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, बस ये चीजें नहीं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, यू कैन सी पिन निफ्टी का 10 रुपीज का स्ट्रैंगल भी बनाया है मैंने। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स आउट ऑफ द स्ट्रैंगल है, निफ्टी शॉर्ट स्ट्रैडल है, निफ्टी का शॉर्ट स्ट्रैंगल है। तो ऑल दिस बैक टेस्टेड डेटा इज अलोंग विथ मी। जब मार्केट में विक्स जो है, इंडिया विक्स जो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आई ट्रेड इन कोटक ओनली, सो दिस जीरो आई एम यूजिंग जस्ट फॉर सेंसिबल पर्पस। यू कैन सी इंडिया विक्स जो है यहाँ पे 11 के नीचे है। जब इंडिया विक्स 11 के नीचे है तब प्रीमियम्स में कैसा इफेक्ट आएगा, एंड आई विल गेट द डेटा फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो ये पूरा डेटा जो है वो डेटा मुझे हेल्प करता है कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो 19 प्रॉफिट हमारा 7,000 रुपीज तक का चल रहा था। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी बुकिंग 50% ऑफ क्वांटिटी। ओके, आई विल बी बुकिंग जस्ट 50% ऑफ क्वांटिटी एंड आई विल बी होल्डिंग द ट्रेड, बिकॉज अब मुझे ये नीचे भी चला जाएगा तो इसमें फ्लो में बैठना है। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, एटलीस्ट 3,000 रुपीज का ट्रेड में प्रॉफिट में घर से लेके जाऊंगा।
तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज इंपॉर्टेंट। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करोगे तब जाके आप ट्रेड को लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो देयर विल बी नो चांस कि आप ट्रेड को लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। अब यहाँ पे मुझे डर किस बात का नहीं है कि ये ऊपर भी चला जाएगा तो भी कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा 50% क्वांटिटी बुक है, 50% प्रॉफिट बुक है। अब ये पूरा दिन भी मोमेंटम करता रहेगा ऐसे ही तो भी कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज प्रीमियम दिखेगा, बेनिफिट मुझे मिल जाएगा, एंड दैट द benefit in options hedging and selling. सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया 10:15 में, अभी 10:30 हुआ है, जस्ट 30 मिनट के अंदर मेरा कैपिटल डिप्लॉयड था 2.35 लाख का। प्रॉफिट चल रहा है 6,000 का, मतलब नियरली अबाउट 3% ऑफ कैपिटल गेन मैंने जस्ट 15 मिनट में कमा लिया है। तो आप परसेंटेज वाइज कैपिटल जब भी, परसेंटेज वाइज बेनिफिट जब भी देखोगे तब जाके आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। आप अगर जैकपॉट हीरो जीरो तो हर ही दिन आएगा, अब तो एक्सपायरी हर दिन है। जैकपॉट हीरो जीरो एक्सपायरी अगर करते रहोगे तो आप कहीं पे नहीं जाने वाले हो। ठीक है, आपके पास अगर 1.5 लाख का भी कैपिटल है तब भी आप इस ट्रेड को कर सकते थे 5 लॉट में। यू कैन सी 10,000 रुपीज का रिस्क होता, 40,000 रुपीज का प्रॉफिट होता। एटलीस्ट 6,000 रुपये नहीं, लेकिन 3,000 रुपये का तो आपका सेफ प्रॉफिट होता है। लॉस होता तो कितना, लॉस बहुत कम है। सो दैट्स व्हाई मैं हेजिंग प्रेफर करता हूँ। तो स्टे विथ मी गाइस, आई विल अपडेट वंस द टारगेट इज हिट। ओके।